So students, in this video, we are going to study Euclidean domain. We are going to do a theorem that every Euclidean domain is a principal ideal domain. So for this, firstly, we need some idea about the Euclidean domain, and then about the principal ideal domain. So let's start. What is PID and what is ED? So first definition is Euclidean domain यूक्लिडियन डोमेन इसकी डेफिनेशन है if okay, an integral domain R is called Euclidean domain. Euclidean domain if there exists a map, there exists a map del from this R minus 0 to Z such that the following condition holds. First condition is del of A is always greater than or equal to 0 for all A belongs to R minus 0, that is a non-zero element of R. Second, del of AB is always greater than or equal to del of A for all AB belongs to R minus 0. Third, for all AB belongs to B not equal to 0, there exists QR belongs to R so that this A is equal to B times Q plus R, where either R is equal to 0 or del of R is less than del of B. So this is very important condition. तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो then we see that integral domain is a Euclidean domain, right? तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन थोड़ी डिटेल में चाहिए तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग वहां पर चेक कर सकते हो. So next we'll talk about PID. What is PID? Principal ideal domain. इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग वहां देख सकते हैं इसको. प्रिंसिपल आइडियल डोमेन. This is again an integral domain. An integral domain R is called principal ideal domain. Principal ideal domain if each ideal is a principal ideal. If each ideal of R is a principal ideal, right? अगर इसका जो भी आइडियल होगा, that is a principal ideal, that is generated by a single element, that is generated by a single element, we see that this integral domain is a principal ideal domain, that is PID. इसको PID भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं ED.
जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ईडी जो है पीआईडी होती है, तो यही हम लोग प्रूव करेंगे। तो हमारा जो रिजल्ट है, वो जो थ्योरम है, सो नाउ वी आर इन ए पोजिशन टू स्टार्ट अबाउट टॉक अबाउट द थ्योरम। लेट्स स्टार्ट। थ्योरम क्या है हमारे पास? थ्योरम है, थ्योरम इज every Euclidean domain is a principal ideal domain. Every Euclidean domain is a principal ideal domain. Principal ideal domain, that is AD implies PID, but converse is not true. But converse is not true. इसका जो converse होता है, that is not true. Principal ideal domain जरूरी नहीं है यूक्लिडियन डोमेन भी है। इसके लिए एग्जांपल देंगे हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट विथ इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। So let R be a Euclidean domain with, अब देखिए यहाँ पे नॉर्म फंक्शन क्या होता है। ये जो हमने डेल्टा डिफाइन किया है ना, दिस डेल्टा इज कॉल्ड नॉर्म फंक्शन, ये याद रखिएगा। इसको नॉर्म फंक्शन भी बोलते हैं। सो विद नॉर्म फंक्शन डेल्टा फ्रॉम R-0 to Z such that first condition is del of A is greater than equal to 0 for all A belongs to R-0. Second, del of AB is greater than equal to del of A for all AB belongs to R-0. And third is for all AB belongs to R, B is not equal to 0. There exists Q and R belongs to Q, Q comma R belongs to R, such that this A is equal to B times Q plus R, where either R is equal to 0 or del of R, this is less than equal to less than del of V. So ये हमारे पास गिवन है, क्योंकि ये आर का यूक्लिडियन डोमेन है, तो ये तीन जो प्रॉपर्टीज हैं ये सेटिस्फाई करेंगी इसमें। नाउ हम लोग को शो करना है कि ये क्या है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में। नाउ वी हैव टू शो दैट, हैव टू शो दैट आर इज ए पीआईडी। मुझे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बताना है। फॉर दिस इट इज enough to show that every non-zero ideal, every non-zero ideal of R is a principal ideal, is a principal ideal। मुझे क्या बताना है इसमें कि हर एक आइडियल जो नॉन जीरो आइडियल होगा इसका आर का,
वो क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है। तो लेट्स स्टार्ट, कोई एक आइडियल ले लेते हैं। लेट लेट ए बी ए नॉन जीरो आइडियल, बी ए नॉन जीरो जीरो नॉन जीरो आइडियल, आइडियल ऑफ आर, दैट इज ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो है जीरो के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब अगर जीरो नहीं है, सो दिस मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक एलिमेंट तो नॉन जीरो होगा इसमें, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सेट बनाता हूँ। लेट एम इज इक्वल टू डेल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। मैंने एक सेट ले लिया। तो दिस इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर बिलोंगिंग टू ए। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेल एक्स की वैल्यू होगी वो मैं ले लूंगा। तो ये डेल एक्स क्या है, दिस इज ए इंटीजर फंक्शन, है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में सारे ये। तो यहाँ पे आ जाइए। अभी ये सारे के सारे डेल जो हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हैं। पहली प्रॉपर्टी कहती है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जितने भी डेल हैं, डेल एक्स हैं, वो क्या है, नॉन नेगेटिव हैं। दिस इंप्लाइज एम इज ए सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आ गए इसमें, है ना। नाउ सिंस, अब देखिए सिंस आपके पास हमने क्या लिखा है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक ए एलिमेंट होगा जो नॉट इक्वल टू जीरो है, इसमें होगा ही होगा। सिंस जीरो इज नॉट इक्वल टू ए, ये बिलोंग करता है ए में। अगर ए में बिलोंग करता है तो इसका मतलब दिस मीन्स दैट डेल ऑफ ए किस में जाएगा, ये एम में जाएगा जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट एम इज नॉन एम्प्टी। एम जो है वो नॉन एम्प्टी हो गया। ठीक है। तो एम कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है। नाउ एम इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सो सो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, सो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कहता है says M must contain a least element, contain a least, सबसे छोटा एलिमेंट इसमें होगा। ये वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है कि अगर कोई M नॉन एम्प्टी सबसेट है तो पॉजिटिव इंटीजर्स का या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का, तो इसमें क्या होगा, एक लीस्ट एलिमेंट जरूर होगा। सो मैं लेट करता हूँ कोई जो लीस्ट एलिमेंट है वो क्या है, डेल बी है। सो लेट जीरो नॉट इक्वल टू बी बिलोंग्स टू एम सच दैट डेल बी बिलोंग्स टू किसमें, एम में है, और डेल बी क्या है, एंड डेल बी इज द लीस्ट एलिमेंट, इज द लीस्ट एलिमेंट एलिमेंट ऑफ एम। क्योंकि मुझे पता है कि एम के एलिमेंट कैसे हैं, एम के एलिमेंट ऐसे हैं कि डेल एक्स, ये एक्स किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए। सॉरी, ये बी में नहीं, ये ए में एलिमेंट है, ये ए में होना चाहिए, तभी आपका एम में जाएगा ना एलिमेंट।
ये होना चाहिए ए में, ठीक है। तो ये एलिमेंट अगर ए में होगा तो इसमें एलिमेंट आएगा, इसलिए मैंने ए में का एलिमेंट लिया, सही दैट कि डेल वी किसमें एम में जाएगा ऑब्वियसली। तो डेल वी को मैंने क्या ले लिया, सबसे छोटा एलिमेंट ले लिया, ठीक है, सबसे लीस्ट एलिमेंट ले लिया इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइन। अब मेरा क्लेम क्या है, जो मेरा क्लेम है, देन वी क्लेम दैट, मैं क्या क्या क्लेम करूंगा, ये जो ए है ये किससे जनरेट होता है, बी से जनरेट, ठीक है। अब मुझे पता है ये बी किस में जा रहा है, नो, बी किस में है, ये बी है ए में। अगर बी जो ए में है तो इसमें जो इससे आइडियल जनरेट होगा वो किस में जाएगा, वो भी तो ए का सबसेट हो जाएगा। तो एक चीज हो गई, इसको वन रख लीजिए। अब हम अदर वे राउंड बताएंगे इसको। अब लेट करते हैं, लेट ए, अब मैं कोई ए में एलिमेंट लूंगा, अब बताऊंगा वो बी, इस जो आइडियल जनरेट बाय बी है वो उसमें लाइक करता है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट वी विल शो दैट, विल शो दैट ए इज कंटेनिंग बी, ये मुझे शो करना है। तो मैं ए में कोई एलिमेंट लेता हूँ, तो लेट कर लीजिए, लेट से x belongs to a, be any element, एलिमेंट, एलिमेंट, ये कोई एलिमेंट ले लिया मैंने, ठीक है। नाउ वी नो दैट, नाउ हमें पता है ए क्या है, ए इज ए यूक्लिडियन डोमेन, इज ए यूक्लिडियन, सॉरी नॉट ए, दिस इज आर। नाउ आर इज ए यूक्लिडियन डोमेन, मैंने क्या लिया हुआ है, नाउ आर इज ए यूक्लिडियन डोमेन। अगर ये यूक्लिडियन डोमेन है तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास दो एलिमेंट आ गए, एक मेरे पास क्या है, एक एलिमेंट कौन सा मिल रहा है, ये बी मिल रहा है मुझे ए में, और दूसरा एलिमेंट मुझे मिल रहा है एक्स मिल रहा है ना। तो ये एक्स और बी किस में है, ये किस में एलिमेंट है दोनों, ये एलिमेंट है ए में। तो ए किसका सबसेट है, आर का। तो इसका मतलब दिस मीन्स दैट एक्स और बी किस में है, बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स और बी बिलोंग करते हैं आर में, और यहाँ मैंने देखा है कि बी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसकी जो यूक्लिडियन डोमेन की प्रॉपर्टी कौन सी है, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी, ये थर्ड प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर को, बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे क्यू आर मिलेगा, सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये पूरा लिखेंगे इसको। सो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट, यहाँ लिख देता हूँ, चलिए आगे लिख देते हैं इसको। अभी है, नाउ आर इज ए यूक्लिडियन डोमेन एंड एंड एक्स बी belongs to R, so that B is not equal to zero. This implies there exists QR. There exists QR. ये किसमें आएंगे, R में, such that this X is equal to, X can be written as Q times B plus R, where R आपका क्या है, where either R क्या हो सकता है, R is equal to जीरो होगा, या क्या होगा, या तो ये जीरो होगा, तो या फिर इसका जो डेल आर है वो किससे छोटा होगा, डेल आर बी से छोटा होगा, ठीक है। तो ये चीज आ गई हमारे पास। नाउ लेट बी इक्वेशन वन। नाउ मैं क्या लिख सकता हूँ, नाउ यहाँ पे मैं आर की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, आर कैन रिटर्न एज एक्स माइनस क्यू बी, है ना। तो ये किस में जाएगा, ए में जाएगा, बिकॉज ये ए में क्यों जाएगा, लेट्स सी, एक्स किस में है आपके पास, देखिए पीछे जरा, एक्स है आपके पास कहाँ पे है, दिस एक्स, एक्स इज इन ए, है ना, यहाँ पे एक्स किस में है, ए में है, एक्स इज इन ए, और क्यू किस में है,
आर में है और आपका बी किस में है, ये ए में है। एंड ए क्या है आपका, ए इज आइडियल। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट क्यू बी किस में जाएगा, ए में जाएगा, बिकॉज दीज टू आर, ए क्यू आर में है, बी ए में है, तो ए आइडियल है, तो क्यू बी किस में जाएगा, ए में जाएगा। नाउ हमारे पास क्या हो गया, एक्स और क्यू बी किस में हो गए, ए में हो गया। एंड ए इज आइडियल, आइडियल क्या होता है, सब रिंग होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस क्यू बी किस में चला जाएगा, ए में चला जाएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस क्यू बी किस में आ गया, ए में आ गया। राइट, इसका मतलब हमें मिला आर किस में मिल गया, ए में। दिस मीन्स दैट आर किस में मिल गया, ए में। so दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। अगर कोई पॉइंट ए में है, एम कहाँ गया हमारा, सेट जो हमने बनाया था एम, हाँ ये आपका एम है। अगर कोई आपका पॉइंट किस में है, ए में है, तो ये जो डेल एक्स किस में जाएगा, एम में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो डेल आर है ये किस में चला गया, तो ये किस में चला गया, एम में चला गया। फाइन, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो स्टेटमेंट है, बट आर क्या है हमारे पास, आर इज इक्वल टू 0 है, और डेल आर लेस देन डेल बी है। ये दो चीजें हैं, बट ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। बट डेल आर लेस देन डेल बी इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ये क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता है कि एम में जो है डेल बी सबसे छोटा एलिमेंट है, इससे छोटा एलिमेंट कोई भी नहीं। बिकॉज बिकॉज del r is the del b is the smallest, is the least element, is the least element element of m। ये सबसे छोटा एलिमेंट है m का, तो इससे छोटा तो कोई होगा ही नहीं। तो डेल आर जो है लेस देन डेल बी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब देयरफॉर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होगी, आर क्या होना चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए। तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, राइट। तो हमारे पास आ गया आर इज इक्वल टू 0। अब वन से ले लीजिए, इक्वेशन वन देखिए। नाउ from equation 1, therefore from equation 1 इक्वेशन क्या बताती है आपको, ये बता देती है आपको x किसके बराबर है, q टाइम्स b। सो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स x किस में आ गया, दिस इज बिलोंगिंग टू b, आइडियल, आइडियल जनरेटेड बाय b। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है b से जनरेट हो रहा है। तो हमने x किस में लिया था, चलिए पीछे देखते हैं। x किस में लिया था हमने, ये है हमारे पास x, x लिया था हमने ए में, राइट। तो हमने बता दिया जो x है ए में था, अब बता दिया x किस में है, इस जनरल आइडियल में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज लेट इट बी, दिस इंप्लाइज a is contained in b, ideal generated by b। Let it be equations again, I think I have given number one somewhere else, let it be two। इसको दो रख लीजिए। तो यहाँ पे मैं कहीं इसका यूज किया ना, हाँ यहाँ पे टू रख लीजिए ना, ये टू हो जाएगा। लेट मी क्लियर दिस, इसको सही ढंग से लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए टू इक्वेशन। फाइन, prime equation, this is getting x is equal to qv, and this is going to be x is equal to is belonging to the ideal generated by v, and we can say that this a is contained in v। So let it be equation 3, so let it be equation 3। So from equation 1, this equation 1, this says that b is containing, the ideal generated by b is contained in a, and this equation 3 implies a is contained in ideal generated by b। So from 1 and 3, so therefore from 1 and 3, what we are getting, we are getting a is generated by b,
राइट। तो ए यूनिट बाय बी, तो यहाँ पे क्या था, ए कोई नॉन जीरो आइडियल था, है ना। तो ए क्या था हमारे पास, वेयर इज ए, सो यहाँ पे भाई ए क्या था, दिस इज एनी नॉन जीरो आइडियल ऑफ आर, है ना, दिस इज एनी नॉन जीरो आइडियल, so this is any non-zero ideal, so we said that every non-zero ideal is a principal ideal here, okay, generated by single element. This means every non-zero ideal, every non-zero ideal of R is a principal ideal. Fine, हमने प्रूव कर दिया ये क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है, डन। तो हमने प्रूव कर दिया एवरी नॉन जीरो आइडियल ऑफ आर इज द प्रिंसिपल आइडियल। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर हमारे पास क्या हो गया, इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो ये तो हमें प्रूव करना था ना, यही तो हमें प्रूव करना था, यहाँ पे हमें यही तो प्रूव करना था। फॉर दिस इट इज इनफ टू शो दैट एवरी नॉन जीरो आइडियल ऑफ आर इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो दिस सेज, इससे क्या बन जाता है, आर क्या बन जाता है आपका, पीआईडी बन गया। ठीक है, तो यही तो हमें बताना था। तो इसका मतलब यूक्लिडियन डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन implies principal ideal domain। ठीक है, अब हम देखना है इसका कन्वर्स, देखते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके, हमने पहले ही बोल दिया था कन्वर्स इसका जो है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो सिंपली हम लोग एग्जांपल देंगे। तो इसके लिए जो एग्जांपल फिट बैठती है वो है आपका, एग्जांपल ले लीजिए, z रूट ऑफ -19, ये आर ले लीजिए। ठीक है, तो ये कैसा सेट होता है, ये सेट होता है a प्लस बी रूट ऑफ -19, वेयर ए बी दोनों किसमें है भाई, ये जेड में, भाई। तो ये क्या है, दिस इज ए पी आई डी, देन जेड -19 इज ए पी आई डी बट नॉट यूक्लिडियन डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन, ये यूक्लिडियन डोमेन नहीं है भाई। तो यहाँ से ये एग्जांपल है, इसके लिए ये इनफ है, इतना बताना आपके लिए कि ये जो है एक पीआईडी हमको मिलती है जो क्या है, यूक्लिडियन डोमेन नहीं है। तो हमने प्रूव कर दिया एक यूक्लिडियन डोमेन होगी तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगी। बट जो इसका जो पीआईडी है वो जरूरी नहीं कि वो यूक्लिडियन डोमेन भी हो। ठीक है, सो दिस प्रूव्स द थ्योरम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो वी आर स्टॉपिंग हियर, थैंक यू।